ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شارب مالا کا شوہر تھا۔ مالا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اور شارب کا تعلق بھی ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ مالا کی ساس سسر وفات پا چکے تھے اور اس کا شوہر اکلوتا تھا۔ مالا بھی والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی شادی کے بعد اس کے والدین نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ مالا شادی کے وقت اس رشتے سے اس لیے بھی خوش تھی کہ ایک تو اس کا شوہر اکلوتا تھا اور دوسرا وہ سوچتی تھی کہ شادی ہوتے ہی وہ والدین کے ساتھ رہے گی۔ مگر شادی کے بعد مالا کو اندازہ ہوا کہ اس کا شوہر بہت غصے والا تھا، اس لیے اس کی جرت ہی نہ ہوئی کہ وہ اپنے والدین کو ساتھ رکھنے کی بات کرے، کیونکہ اس کے والدین ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور مالا کے شوہر کا گھر اپنا تھا۔ بے شک وہ پرانا اور چھوٹا گھر تھا۔ اب مالا کوشش کرتی کہ اس کے ساتھ پیار و محبت سے رہے تو شاید وہ اس کے والدین کو ساتھ رکھنے کی بات کر لے، مگر وہ تو ہر کوشش کے باوجود اسے خوش نہ ہوتا تھا۔ اس کو بمشکل اس نے فون پاس رکھنے کی اجازت دی تھی کہ تم نے کس کو کال کرنی ہے، تو اس نے روحانسی ہو کر کہا تھا کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، کبھی بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جواب میں وہ گرج کر بولا تھا، تو تم کیا ڈاکٹر نہیں ہو جو وہ بیمار پڑیں گے تو فون کریں گے تو فوراً تم ان کا علاج کرنے چل پڑو گی؟ وہ دکھی انداز سے بولی، میں ان کی تیمارداری تو کر سکتی ہوں، بوڑھے ہیں بیچارے، اکیلے رہتے ہیں۔ وہ طنزیاں ہنس کر بولا، وہ 2 ہو کر اکیلے رہتے ہیں اور ہم کتنے ہیں؟ 1 درجن ہے کیا؟ ہم بھی تو اکیلے ہی رہتے ہیں۔ وہ اسے زیادہ جواب نہ دیتی تھی کیونکہ وہ ہر بات کا الٹا مطلب ہی نکال لیتا تھا اور اس کا جواب بھی الٹا ہی دیتا تھا، اسے مزید غصہ چڑھا دیتا تھا۔ وہ اپنے والدین کو اس کے رویے کے بارے میں کچھ نہ بتاتی تھی کہ وہ پہلے ہی ادھر رشتہ دے کر پچھتا رہے تھے۔ اس کے اور رشتے بھی آئے تھے مگر وہ سب بڑی فیملی پر مشتمل تھے اور یہ اکلوتا لڑکا دیکھ کر انہیں لالچ آ گیا تھا کہ بیٹی سسرال کے جھنجھٹوں سے دور رہے گی۔ جس طرح عموماً لڑکیاں سسرال کے رشتوں سے پریشان رہتی ہیں، کسی کی ساس نہیں اچھی تو کسی کی نند نہیں اچھی تو کسی کی جٹھانی نہیں اچھی، مگر ادھر جس کے ساتھ گزارا کرنا تھا وہ نہ اسے میکے جانے دیتا نہ ان کو بلانے دیتا کہ اتنے سالوں تو ان کے پاس رہتی رہی ہو، اب سسرال والوں کو بھی کچھ وقت ہو۔ میں پہلے ہی سارا دن ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور ہوں بھی اکیلا، اوپر سے تم بھی جا کر میکے بیٹھ جاؤ تو پھر مجھے تم سے شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے آس پڑوس سے میل بلاپ رکھنا چاہا تو وہ بھی اس سے ناگوار گزرا کہ جب میں ان محلے والوں کو منہ نہیں لگاتا تو تم کیوں ان سے تعلق رکھتی ہو؟ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک بات اسے حیران کرتی تھی کہ وہ اپنے والدین کی قبروں پر روزانہ جاتا تھا، چھٹی والے دن وہ اسے بھی ساتھ لے کر جاتا۔ وہ ایک بڑے ہوٹل میں ویٹر تھا اور اس سے ٹپ بھی ملتی رہتی تھی، جس سے اس کی تنخواہ کے علاوہ بھی آمدنی اچھی تھی اور وہ اسے پیسے بھی کھلے دے دیتا تھا اور یہ نہیں پوچھتا تھا کہ کہاں خرچ کیے۔ وہ باہر گزرنے والوں سے چیزیں لے کر کھایا کرتی تھی۔ اس بات پر وہ شکر کرتی تھی کہ اس پر شک نہیں کرتا تھا، چاہے وہ سبزی والوں سے ریٹ پر کتنی دیر ہی بحث کرتی رہے۔ وہ اکثر ہوٹل سے بچا کچا کھانا بھی لے آتا تھا۔ وہ سارا دن اس کے کمرے میں لگی ایک چھوٹی سی LCD دیکھتی رہتی تھی اور کیبل بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن اکیلی بور بھی ہوتی رہتی تھی اور کبھی سبزی سودا لیتے وقت کسی محلے دار عورت سے سلام دعا بھی کر لیتی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی کہ اکیلی ہوتی ہو تو ہمارے گھر آ جایا کرو، تو مالا کہتی کہ میرے شوہر کسی کے گھر جانا میرا پسند نہیں کرتے اور اس وجہ سے میں کہیں نہیں جاتی ہوں۔ تو محلے کی ایک عورت جو اس سے بڑی تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، وہ اس کے گھر کے بارے میں سب جانتی تھی۔ اس سے مالا کی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہارا شوہر تو محلے والوں سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ مالا نے اسے کہا، باجی مجھے میرے ساس سسر کے بارے میں جو باتیں آپ کو پتہ ہے پلیز مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا، میں کسی دن آ کر جب فارغ ہوں گی تو پھر بتاؤں گی۔ مالا خوفزدہ لہجے میں بولی، باجی مگر میرا شوہر کسی کا میرے گھر آنا بھی پسند نہیں کرتا۔ باجی اسے لاپرواہی سے بتانے لگی کہ تیری طرح شادی کے شروع میں بھی اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی۔ میرا شوہر تو شکی مزاج بھی بہت تھا اور روز آ کر میرے موبائل کی کالیں تک چیک کرتا تھا، مگر رفتہ رفتہ جب بچے وغیرہ ہو گئے اور اس کا میرے اوپر اعتماد بحال ہو گیا اور تب پھر اس نے میرے اوپر سے پابندیاں ہٹا دیں۔ تم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی ہو؟ اگر میں تمہارے گھر بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ اوپر سے آ گیا تو میں چھپ جاؤں گی، یہ کہہ دینا کہ پہلی بار آئی ہوں۔ اب تو روز باجی فارغ وقت میں اس کے گھر آنے لگی اور دونوں مل کر چائے پیتی اور ساتھ سموسے وغیرہ منگوا لیتی، ٹی وی دیکھتی اور گپ شپ لگاتی۔ اس کا شوہر کام پر چلا جاتا اور بچے بھی اسکول چلے جاتے۔ اس کے گھر میں اور کوئی نہ ہوتا۔ وہ شوہر کے ہوٹل سے لائے ہوئے سالن وغیرہ بھی اسے دے دیتی تو اس کے بچے خوش ہو جاتے۔ مالا کا شوہر اس سے یہ نہ پوچھتا کہ بچا ہوا سالن تم نے کدھر کیا ہے،
बाजी उसे अक्सर इसके ससुराल के किस्से सुनाती रहती। माला का शौहर शारिब वालिदैन की इकलौती औलाद था। इसके वालिदैन की आपस में बनती न थी, क्योंकि दोनों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। शारिब का बाप अगर बीवी पर चिल्लाता तो वो भी तुर्की ब तुर्की उसे जवाब देती। हर वक्त उनके घर एक हंगामा मचा रहता। दोनों एक दूसरे को न छोड़कर जाते थे और न इत्तेफाक से रहते थे। मोहल्ले वाले इनके आए दिन के झगड़ों से तंग पड़ते थे। शारिब इस वक्त उनके झगड़ों की वजह से सहमा सहमा रहने लगा था। उसे डर लगा रहता था कि अभी अब्बू घर आएंगे तो फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और मज़े की बात यह थी कि दोनों कभी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था न होते थे, बस जुबानी कलामी ऊंची ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और सब मोहल्ले वाले जमा होकर बड़ी दिलचस्पी से इनकी लड़ाई देखते रहते थे और उन्हें किसी की परवाह तक न होती थी। और शारिब जब बाहर गली में लड़कों के साथ खेलने जाता तो वो उसे उसके वालिदैन की लड़ाई के हवाले से खूब छेड़ते और इसका मजाक उड़ाते। जब शारिब स्कूल जाता तब भी वही लड़के दूसरे लड़कों को बहुत मज़ाहिया अंदाज में इसके वालिदैन के झगड़े के बारे में बताते। कुछ लड़के तो इसके वालिदैन बन जाते, एक माँ बनती और दूसरा बाप बनता। इस तरह वो लोग इसके वालिदैन की एक्टिंग करते तो बाकी लड़के खूब कहके लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंसते। अक्सर अब शारिब की इन लड़कों से लड़ाई रहने लगी थी। स्कूल आए रोज़ इसके वालिदैन को बुलाकर इसकी शिकायत लगाते तो शारिब के वालिदैन घर आकर फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, और दूसरा कहता नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से होता है। शारिब को एक पल भी वो सुकून न लेने देते और जब वो सारा दिन खूब लड़ झगड़ चुकते तो फिर इकट्ठे एक ही प्लेट में खाना भी खा रहे होते। मगर ये बात तो सिर्फ शारिब जानता था, मोहल्ले वाले तो ना जानते थे। शारिब को स्कूल से हर वक्त लड़कों से लड़ने और मारपीट की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। तब से उसे मोहल्ले के लड़कों से नफरत हो गई और उसने सारे मोहल्ले वालों से ही कता ताल्लुक कर लिया, क्योंकि कुछ बुजुर्ग हजरात उसे रास्ते में देखते और रोक कर कहते कि तुम अब जवान हो, अपने वालिदैन की सुलह सफाई से रहने की कोशिश कराओ ताकि सारे मोहल्ले को रोज़ दिन ड्रामा न देखना पड़े। शारिब अंदर से गुस्से से खोल जाता। उसने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली। रात को उसे अक्सर डरावने ख्वाब आते और वो डरने लगता। कभी ख्वाब में चीखें मारता तो वालिदैन उठकर आ जाते। इसकी माँ ने इसके लिए मोहल्ले के रिश्ते करवाने वाली को इसका रिश्ता कराने का बोला, क्योंकि ख़ानदान में इसकी माँ ने जिससे भी अपने बेटे का रिश्ता मांगा तो उन्होंने रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया कि तुम मियाँ बीवी की सारी ज़िंदगी आपस में न बन सकी, और ऊपर से बेटा भी यही सब देख देख कर जवान हुआ है। वो है भी गुस्से वाला, न ख़ानदान वालों के घर आता जाता है और ना ही किसी से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए हम इससे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते। ये एक तो हमारी बेटी से लड़ता झगड़ता रहेगा और दूसरा उसे अपनी तरह किसी के घर भी आने जाने नहीं देगा। मोहल्ले वालों ने भी रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। तब शारिब के वालिदैन को एहसास हुआ कि वालिदैन की आपस की लड़ाइयों की वजह से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो अंदर से खौफजदा और चिड़चिड़ा मिजाज का हो जाता है। शारिब को ख़ानदान वालों से भी और मोहल्ले वालों से भी नफरत हो गई कि इन लोगों ने उसकी माँ को खाली हाथ लौटाया था और रिश्ता न देकर उनकी बेइज्जती की थी। उसने इस दिन के बाद से सब मोहल्लेदारों को, हत्ता के बुजुर्गों को भी सलाम दुआ करनी छोड़ दी थी। वो इसे बदतमीज़ और मगरूर कहने लगे, मगर शारिब को किसी की भी परवाह न रही थी। सब ने बातें बना बना कर आखिर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। चंद माह ही बीते होंगे कि उसे अचानक इत्तला मिली कि उसके बाप को अचानक हार्ट अटैक आया है और उसी जगह पर ही मौत ने दबोच लिया। शारिब के लिए ये ज़ख्म बिल्कुल नया था। वो बिलक बिलक कर रोया। इसकी माँ, जो हर वक्त शौहर से लड़ती रहती थी, बेहोश हुई और जगह पर ही ख़त्म हो गई। इसकी अचानक मौत से सब घबरा गए और उसके शौहर को कब्रिस्तान ले गए और कुछ लोग तो जनाजा पढ़ने लगे। मगर शारिब को रिश्तेदार पकड़कर वापस घर ले आने लगे और उसे बताया कि तुम्हारी माँ भी फोत हो गई है। तो वो वहीं बेहोश हो गया। उसे कुछ लोग हॉस्पिटल ले गए और वो 2 घंटे बेहोश रहा। इसी दौरान उसकी माँ को सबने फौरी तौर पर 2 घंटे के अंदर अंदर जनाजा भी पढ़वा कर वापस आ गए। शारिब को जब घर लाया गया तो उसे पता चला कि उसे माँ का आखिरी दीदार भी नसीब ना हुआ। तो वो दुख से चूर होकर, निढाल सा होकर कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, आखिर आप लोगों को क्या जल्दी थी, मुझे तो आ जाने देते। सब ने उसे तसल्लियाँ दी कि सब ने अपने घरों को वापस भी जाना था। खाना खा के काफ़ी सारे लोग वापस चले गए और कुछ मोहल्ले वाले और चंद करीबी रिश्तेदार रह गए। कुछ लोग बातें बनाने लगे कि भलाई का ज़माना नहीं, इसके सारे काम आराम से मुफ्त में हो गए, इसके पास तो इनके कफन दफन तक के पैसे ना होंगे। और बजाय शुक्र करने और सबका शुक्रिया अदा करने के, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मुहावरा इस पर फिट आता है। मगर कुछ इसके दुख का एहसास करते हुए कहते
कि इसका इंतज़ार करना चाहिए था। उसे अब ये गम सारी जिंदगी रहेगा कि वो अपनी माँ का मुंह तक न देख सका। लोग अपने प्यारों का मुंह देखने के लिए मुल्क से बाहर हों तो वहाँ से आने की कोशिश करते हैं, और ये तो फिर भी पास मौजूद था। इसका इंतज़ार कर लेते, मगर सब ने अपनी जान छुड़ानी थी वो छुड़ा ली, और उसके जज्बात का किसी ने ख्याल न किया। 2-3 दिन कुछ हमदर्द लोग उसको संभालते रहे और ज़बरदस्ती खिलाते पिलाते रहे। रफ्ता रफ्ता सब अपने अपने घरों को जाने लगे। इस मोहल्ले की रिश्ते वाली मासी इधर ही रही और अपने बेटे को कहती कि इसका ध्यान रखो। इसको वो खाना भी ज़बरदस्ती खिलाती, इसके कपड़े बर्तन धोती, गर्ड्स इसके घर के सारे काम करती। 40 दिन वो घर से आकर इसकी ड्यूटियां भी देती रही और इसका हौसला भी बढ़ाती रही। जब उसको कदरे सब्र आ गया और मासी ने उसे आकर समझाना शुरू कर दिया कि बेटा शादी कर ले, इस घर को और तुझे एक औरत की सख्त ज़रूरत है। वो कहता, मासी जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब तो अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं, तो इसको कहाँ से खिलाऊंगा। वो बोली, अच्छा तू नौकरी की तलाश कर और मैं और मेरा बेटा हम उम्रे पर जा रहे हैं। जो ही तेरी नौकरी लगी मुझे बताना, मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी। वो फिर रुहांसा होकर बोला, मासी मैं शादी का खर्चा कहाँ से लाऊंगा। तो वो बोली, इसकी तू फिक्र ना कर, मेरे ऐसे लोगों से ताल्लुकात हैं जो गरीबों की शादी करवाते हैं। वैसे मुझे चंद गरीब लोगों ने भी रिश्ते का बोला हुआ है कि वो जहेज़ नहीं दे सकते और उनके पास भी शादी करवाने के पैसे नहीं। बैतुल माल वाले एक दिन सबकी इज्तिमाई शादी करवाते हैं और पूरा जहेज़ भी दे देते हैं, और लड़कों के लिए कोई रोज़गार चलाने के लिए रिक्शा वगैरह भी देते हैं। बस तू भी दरख्वास्त दे देना, मैं फ़ार्म ला दूंगी तो उससे पुर कर देना, फिर मैं बेटे से कहकर तेरी तरफ से दरख्वास्त दे दूंगी। वो ज़बरदस्ती फॉर्म ले आई और उसने मजबूरन उसे पुर करवाया, और मासी ने उसे मोबाइल पर चंद तस्वीरें ज़बरदस्ती दिखानी शुरू कर दी। वो भी बग़ैर दिलचस्पी के देखता रहा। जब अचानक उसकी नज़र माला की तस्वीर पर पड़ी तो एकदम मासी से बोला, रुको रुको, इस तस्वीर को दोबारा दिखाना। जब मासी ने उसे दोबारा दिखाई तो उसे पहली नज़र में ही माला पसंद आ गई, और वो मासी के पीछे पड़ गया कि उसकी शादी किसी और से मत करवाना, मुझे ये बहुत पसंद आई है, और उम्रे पर जाने से पहले मेरा इससे रिश्ता पक्का करवा कर जाना। इसके लिए मैं पूरी तवज्जो से नौकरी भी ढूंढने की कोशिश करूँगा और अब जीने की कोशिश भी करूँगा। उसने मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा कर दी है, वरना तो मैं सोचने लगा था कि मैं अब किसके लिए जीऊँगा। वालदैन वफ़ात पा चुके हैं, अब मेरा इस दुनिया में कौन बचा है। मासी ने कहा, ना पुत्र, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है उसे उसकी अमानत समझकर नेक अमल करके जियो। कल को इसे इसका जीने का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, और जीने का वैसे भी कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसद ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। हमें तो अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। ज़िंदगी जीने का कोई ना कोई नेक मकसद होना चाहिए। अगर नौकरी भी करो तो ये नीयत रख के करो कि ऊपर वाले की रज़ा के लिए, अपने घर वालों के नानो नफ़के के लिए कर रहा हूँ, तो इसको नौकरी करने का भी सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि हर अजर नीयत पर मिलता है और काम की नीयत अच्छी होनी चाहिए। शारम मासी से कहने लगा, मासी तुम और तुम्हारा बेटा उम्रा करने के लिए जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है, तो तुम ही मुझे कुछ पैसे उधार दे दो तो मैं कोई काम धंधा शुरू कर सकूं। क्योंकि अब्बा जिंदा थे तो मैं बेफिक्री की ज़िंदगी जी रहा था और सोचता था जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी मैं नौकरी नहीं करूँगा। मगर इस लड़की की तस्वीर दिल पर लगी है। क्या नाम है इसका? तो मासी ने बताया कि माला नाम है इसका। वो झट खोए खोए लहजे में धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ बोला कि इसकी तरह इसका नाम भी खूबसूरत है। मासी ने जवाब दिया, हाँ बच्ची बहुत अच्छी है, तेरी तरह वो भी वालदैन की इकलौती औलाद है। काफ़ी समझदार और शरीफ लड़की है, 7-8 जमातें पढ़ी हुई है। क्योंकि फिर उसे स्कूल छोड़ना पड़ा कि इसके वालदैन डरते थे कि हमारी बच्ची जवान हो रही है तो बाप अपने काम पर निकल जाता है, तो माँ एक फैक्ट्री में काम पर निकल जाती है, तो वो बच्ची को घर बंद रहने की हदायत करके जाते थे कि बाहर ना निकलना। इस वक्त उसकी दादी भी जिंदा थी और वो दादी की देखभाल के लिए भी घर रहती थी कि फिर उसे कौन देखेगा। और हमारे पास अगर इतना पैसा होता तो मैं यूं घर घर जाकर ख्वार होती रिश्ते करवाती फिरती। ये तो इत्तेफाक से मेरे बेटे की एक बड़े होटल में वेटर की नौकरी लग गई है और मालिक भी उसके काम से खुश है, तो वो सवाब की नीयत से कुछ लोगों को उम्रा करवा रहा है, तो मेरे बेटे और मुझे उसके तवस्सुत से उम्रा करने की सादत नसीब होगी। मैं बेटे से कहकर तेरी नौकरी की भी बात करती हूँ, हो सकता है कि तेरी भी वहाँ कोई जगह निकल आए, और नौकरी बहुत अच्छी है, तनख्वाह के साथ टिप के पैसे भी फालतू मिल जाते हैं और मालिक भी अच्छा रहमदिल इंसान है। मेरा बेटा मुझे काम छोड़ने का कह रहा है, तो मैंने भी उससे वादा किया है कि बस ये जो रिश्ते अभी मैंने करवाने का वादा किया है इनको करवा कर फिर मैं ये काम छोड़ दूंगी। शारब ने दुखी लहजे में कहा, मासी मुझे अकेला मत छोड़ना, आती जाती रहना,
तुम तो जानती हो कि मेरी ना किसी रिश्तेदार से और ना मोहल्ले वालों से बनती है। क्या किया सब ने मेरे साथ, मुझे सारी जिंदगी का एक रोग दे दिया कि मुझे बदनसीब बना दिया कि मैं आखिरी वक्त में अपनी माँ का मुंह भी ना देख सका, इसके जनाजे को कंधा भी ना दे सका। मुझ जैसा कोई बदनसीब होगा, ये सब इन लोगों की वजह से हुआ और उन्हें इस बात की गलती का मेरे जज्बात का एहसास तक नहीं हो रहा कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। उल्टा मुझे कफन दफन का इंतजाम करने का एहसान जताते और बातें बनाते हैं कि शुक्र नहीं करता कि सारे काम मुफ्त में हो गए। मैं इतना बेहिस और बेगैरत बनकर सोचूं कि चलो अच्छा है मेरी माँ के कफन दफन का खर्चा मुझे नहीं करना पड़ा। अरे मुझे माँ का मुंह नसीब अगर हो जाता तो मैं इसके कफन दफन के लिए किसी से कर्जा मांग लेता, ये भी ना होता तो मैं भीख मांग लेता, मगर कम से कम सारी जिंदगी माँ का आखिरी वक्त का मुंह ना देखने का पछतावा तो न रहता। मैं रोज कब्रिस्तान जाता हूँ, मेरा जी चाहता है कि मैं कब्र उखेड़ कर माँ के मुंह का दीदार कर लूँ, इसकी लाश से लिपट जाऊँ। मैं माँ की कब्र पर जाकर इसकी कब्र से लिपट लिपट कर रोता हूँ, फिर भी मुझे चैन नहीं आता और इन सब लोगों की तरफ से मेरा दिमाग गुस्से से भर जाता है। रिश्ते वाली मासी ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा माफ़ कर देने में ही अजमत है, उससे अपने गुनाह भी झड़ते हैं और दिल को भी सुकून मिल जाता है। शायद तुम्हारे नसीब में माँ का मुंह देखना नहीं लिखा था, मगर एक बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि वो लोग जैसे भी हैं, इन लोगों ने तुम्हारे वालिदैन का सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया। अगर वो लोग ना होते तो तुम्हारे पास तो पैसे भी ना थे और इस वक्त तुम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाते। ऐसे मौक़ों पर उधार भी नहीं मिलता। आजकल जानते हो मरना भी कितना महंगा हो गया है, कब्र की ज़मीन भी इतनी महंगी हो गई है, फिर कब्र खोदने वालों की मजदूरी, इसके बाद कफन दफन का कपड़ा वगैरह, फिर गुस्ल देने के लिए भी गुस्ल देने वालों का हदिया, फिर सब मेहमानों का खाना पीना। ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते थे। इनकी फिर भी ये नेकी तो है कि उन्होंने ये सारा इंतज़ाम मिनटों में करके फारिग कर दिया। वैसे भी मुर्दे को ज़्यादा देर रखना भी नहीं चाहिए, गर्मी में उसकी बॉडी ख़राब होने का डर होता है। फिर आजकल ऐसे बॉक्स मिलते हैं जिनके अंदर मुर्दा ख़राब नहीं होता, इसे बिजली से ऑन रखना पड़ता है। और पाकिस्तान में बिजली कितनी जाती है, अगर बिजली चली जाती तो तुम्हारे वालिदैन की बॉडी ख़राब हो सकती थी। मैं तुम्हें एक गरीब आदमी का किस्सा सुनाती हूँ। इसका बाप काफ़ी अरसे पहले वफ़ात पा चुका था। फिर अब जबकि कब्र के लिए ज़मीन खरीदनी पड़ती है तो इस बेचारे ने बाप की कब्र खोद कर हड्डियाँ एक तरफ करके इसमें माँ की कब्र बना दी कि इसके पास अलग कब्र खरीदने के पैसे न थे। रहता भी गरीबों के मोहल्ले में था जहाँ सब उसी जैसे गरीब लोग बसते थे। तो सोचो कि इज्जत से तुम्हारे वालिदैन को कब्र में उतार कर वो लोग सुरखरू होकर वापस आ गए और तुम्हें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा न था कि तुम 2 घंटे बाद होश में आकर नॉर्मल हो जाओगे। उन्होंने तुम्हारे बारे में आपस में मशवरा किया था और लाइट भी बहुत जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम जिस हालत में हो वो समझते थे कि तुम जल्दी होश में नहीं आने वाले, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि इसे शदीद सदमा लगा है और इसी सदमे से मज़ीद बचाना है। शायद इसीलिए भी उन्होंने तुम्हारा इंतज़ार न किया कि तुम होश में आकर माँ को मरा हुआ देखोगे तो मज़ीद टेंशन में चले जाओगे। वो सब तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। इनकी नीयत बुरी ना थी, तुम्हें सिर्फ इनके बारे में गलत फहमी हुई है। दिल से कदूरतें निकाल दो और कीना ख़त्म कर दो और अपनी गलत फहमी की वजह से अपने आप को मज़ीद इन लोगों की नज़रों में मत गिराओ। तुम्हारी इसी अकड़ और गरूर की वजह से तुम्हें कोई भी रिश्ता नहीं दे रहा। अब अल्लाह करे कि माला का रिश्ता वो लोग आसानी से दे दें। इस पर शफकत से हाथ फेर कर वो चले गए। इसके जाते ही शारिब को लगा जैसे उसकी माँ चली गई हो। वो आती थी तो शारिब को काफ़ी ढारस मिलती थी। वो चाहता था कि वो चाहे ही ना, मगर उसका भी अपना घर था, अलग फैमिली थी। वो कब तक इसके पास रह सकती थी। इसकी वजह से ही वो भी जल्द गम से उभर आया था। रिश्ते वाली मासी ने उसको होटल में नौकरी भी लगवा दी और माला से शादी भी करवा दी। होटल का मालिक उसके तोरतवार को पसंद करता था। इसमें एक अकड़ थी कि सीधे मुँह किसी से बात नहीं करनी, किसी को दोस्त नहीं बनाना, संजीदा शक्ल बना कर रखना। होटल के बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलवा कर उसे कहा कि वैसे तो एक मैनेजर की पोस्ट पर फिट आते हो, मगर चूंकि तुम्हारी तालीम कम है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये पोस्ट नहीं दे सकता। अगर तुम एफए भी होते तो मैं शायद फेवर करके तुम्हें ये पोस्ट दे देता, मगर तुम तो मैट्रिक पास भी नहीं हो। वैसे तो मैनेजर की पोस्ट के लिए एमए की तालीम ज़रूरी रखी है, मगर तुम काश कुछ पढ़े होते तो बहुत तरक्की करते। इस वक्त शारिब को तालीम की अहमियत का एहसास हुआ कि काश वो खुद भी हिम्मत करता और लोगों की बातों की परवाह न करता तो आज उसकी ज़िंदगी संवर जाती। उसे भी ऑफिसर बनने का बहुत शौक था और अब उसके मालिक इस पोस्ट के लिए उसे खुद चुन रहे थे, मगर एक तालीम की कमी की वजह से वो रह गया। माला को पाकर वो बहुत खुश था, मगर अपनी अनाव से बहुत अजीज थी, इसलिए अपनी मोहब्बत का ज़्यादा इजहार नहीं करता था। माला को तो रिश्ते वाली मासी ने बताया था कि वैसे वो शादी के लिए राज़ी नहीं होता,
मगर मैंने ज़बरदस्ती फ़ोटो दिखाई तो माला की फ़ोटो देखते ही फिदा हो गया। इस बात से माला खुश हो गई। शारिब ने जाकर माला के वालिदैन से कहा कि मुझे जहेज़ की ज़रूरत नहीं और ना मैं किसी खैराती इदारे से शादी करवा कर जहेज़ वसूल करना चाहता हूँ। जो घर में पुराना सामान पड़ा है, अगर आपकी बेटी इसमें गुजारा कर सकती है तो मैं सादगी से 3 कपड़ों में निकाह करके ले जाना चाहता हूँ। माला के वालिदैन को ये बात बहुत पसंद आई और वो बोले, हम गरीब ज़रूर हैं मगर फिर भी हम रूखी सूखी खाकर सादगी से रहकर खुश हैं और हमें भी किसी की मदद लेना पसंद नहीं। उसने रिश्ते वाली मासी को भी नहीं बताया और चुप करके सादगी से निकाह करके ले आया। उसने सुना तो आकर शारिब को बहुत सुनाई कि मैं तो तुम्हें पूरा जहेज़ दिलवाती, तेरा घर बढ़ जाता और तुझे मोटरसाइकिल भी मिल जाती। तो शारिब ने कहा कि उसने टीवी पर ऐसी शादियां देखी हैं तो उसे बहुत दुख हुआ कि जिनको मोटरसाइकिल मिल रहे थे वो माजूर लोग थे। अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी की बाजू नहीं थी, किसी की टांग नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो उसे बहुत दुख हुआ और उसका दिल न किया इन लोगों का हक मारने का। रिश्ते वाली मासी बोली, मैं तो बहुत गुस्से में आई थी मगर अंदर से तू बहुत नेक और अच्छा इंसान है। वो इसे मुबारकबाद देकर जाने लगी तो माला उसके लिए चाय बना लाई और बोली, आप खाना खा कर जाना। वो इसके खुलूस से बहुत खुश हुई और उसे दुआएं देते हुए बोली, शारिब को बीवी भी बहुत अच्छी मिली है। वो चाय पीकर मसरूफियत का बहाना करके चल पड़ी। शारिब माला के साथ खुश था। आज माला ने वालिदैन से मिलने के लिए उनके घर जाने की जिद की तो वो गुस्से से बोला, एक छुट्टी का दिन मिलता है आराम का तो तुम वो भी मेरा बर्बाद कर देना चाहती हो। मैं नहीं जा रहा। वो रोती रही मगर वो सो गया और वो सब्र करके बैठ गई। वो शाम को उठा तो उससे बोला, कल मैं काम पर जाते हुए तुम्हें वालिदैन के घर छोड़ दूंगा, वापसी पर ले लूंगा, फिर जल्दी उठना ताकि मैं काम से लेट ना हूँ। वो एकदम खुश होकर बोली, मैं फजर के वक्त ही उठ जाऊंगी, अब तो खुशी से नींद भी नहीं आएगी। रो रो कर उसका सर दर्द कर रहा था, इसलिए उसने चाय बनाई और 7 पकौड़े बनाए और उसके पास आकर चाय पीने लगी। उसने मुसरत से पूछा कि पकौड़े कैसे हैं तो वो अकड़ कर उसे देखकर बोला, खा तो रहा हूँ। वो चुप कर गई। उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी कि कहीं अकड़ में कल जाना ही कैंसिल न कर दे। वो इस दिन बहुत सुबह ही उठ गई। वालिदैन को चुपके से फ़ोन कर दिया था उसने। उसके पास बैलेंस भी थोड़ा था। जब वो वालिदैन के घर पहुंची तो वो इसकी राह तक रहे थे। उन्होंने दामाद को बहुत इज्जत से अंदर बुलाने की कोशिश की तो वो ना आया और उसे बाहर ही जूस पकड़ा दिया जो उसने घटाघट पी लिया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जल्दी से चल पड़ा। उनको खुदा हाफिज में न बोला। माला इसके इस रवैये से वालिदैन के आगे शर्मिंदा होने लगी। उसकी माँ ने गहरी सांस भरी और अंदर चल पड़ी। माँ ने उसकी सूजी आंखें और उतरा चेहरा देखा तो फिक्रमंदी से पूछा, बेटी शारिब तेरे साथ ठीक रहता है ना? वो वालिदैन को कुछ भी बता के परेशान नहीं करना चाहती थी तो वो बड़े हशाश बशाश अंदाज में बोली, हाँ अम्मी ठीक है, आप परेशान ना हुआ करें। उसकी माँ अभी तक फैक्ट्री में काम करती थी और उससे इस बात का बड़ा दुख होता था कि शारिब आराम से उनका खर्चा चला सकता है मगर उससे उनका कोई ख्याल नहीं। माँ ने आज फैक्ट्री से छुट्टी की थी और छुट्टी के भी पैसे करते थे, इसलिए वो इतवार को आना चाह रही थी। ये बात उसने शारिब को भी बताई मगर वो गरज कर बोला था कि तुम्हें मेरे आराम की कोई परवाह नहीं, इनकी फिक्र सताए रखती है। वो शारिब का होटल से लाया हुआ खाना भी साथ ले आई थी। उसने माँ को कुछ पकाने न दिया और वही खाना सब ने खाया। माँ को फिक्र लगी कि शारिब अगर रात के खाने पर रुक गया तो अभी से कुछ पका लूँ, मगर वो जानती थी कि वो तो अंदर नहीं आएगा, आते ही जाने की जल्दी डाल देगा। उसने कहा, अम्मी वो थके होंगे, घर जाने की जल्दी होगी, इसलिए अगर बिलफर्ज रुके भी तो मैं जल्दी से चिकन पका लूँगी, आप फिक्र न करें। एक तो वो ससुराल आता भी ना था, जब आता भी तो इस तरह हवा के घोड़े पर सवार होकर आता था। वही हुआ, शारिब अंदर भी नहीं आया और उसे लेकर चला गया। वालिदैन सब समझते थे मगर मजबूर थे। एक दिन अचानक माला का शौहर किसी फकीरनी से निकाह करके घर ले आया और माला कुछ न कर सकी, उसे उसने चुप करवा दिया। माला वालिदैन को ये सब बताकर जिंदा लाश नहीं बनाना चाहती थी। फिर शौहर उसकी एक पीरनी की तरह खिदमत पे लगा रहता। उसने बाजी को बताया तो उसने उससे कहा कि इसे डरना छोड़ दो, मुझे वो औरत चालबाज लगती है और मर्द तो होता ही बेवफा है, इसे मारकर घर से निकाल दो, मैं भी उसे मारने में तेरी मदद करूंगी। बाजी और माला ने उसे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। वो रोते हुए बोली, अब तुम और तुम्हारा शौहर मुझे ढूंढते रह जाओगे मगर मैं ना मिलूंगी। माला हंसते हुए बोली, मैं क्यों ढूंढूंगी तुझे। जब शाम को शारिब घर आया तो माला ने परेशान शक्ल बनाकर कहा कि फकीरनी भाग गई है। वो गुस्से से पागल होकर उस पर गरजने लगा कि जल्दी से उसे ढूंढो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। माला डर कर ढूंढने लगी तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढता हुआ कब्रिस्तान ले गया और एक ताज़ा कब्र के पास बैठकर उसकी मट्टी हटाने लगा तो ये देखकर माला की जान निकल गई कि वहां पर फकीरनी का कड़ा गिरा हुआ था।
इस कब्रिस्तान का रखवाला बाबा भी इधर आ गया तो माला का शौहर उसका कड़ा देखकर चलाने लगा। मेरी फकीरनी की ये कब्र है। बाबा जल्दी से शारब के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे बेटा, ये एक मर्द की कब्र है। तो जिस फकीरनी से निकाह करके लेकर गया था वो इधर आकर दुखी लोगों को बहला फुसला कर झूठे तावीज़ देती थी और नशा भी बेचती थी। ऐसे झूठे निकाह उसने कई लोगों से किए हुए थे। मैं तुझे बताता मगर वो मुझे किसी को कुछ भी बताने पर धमकियां देती थी। अब उसे शुक्र है पुलिस पकड़ कर ले गई है। शारिब ने सुना शर्मिंदगी से माला को देखा और उसके साथ घर वापस आ गया तो माला ने उसे हौसला देते हुए कहा कि शुक्र करो कि तुम बच गए हो। वो रोते हुए बोला, जब इतना अच्छा सहारा मेरे पास था तो मैं क्यों बाहर ढूंढता, मुझे माफ़ कर दो। चलो अभी मैं अपने लीगल वालदैन को हमेशा अपने पास रखूँगा और उनकी खिदमत करूँगा। मोहल्ले वालों से भी और रिश्तेदारों से भी सलूक से रहूँगा और सबका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरा कड़े वक्त में इतना साथ दिया। माला की आंखों में आंसू आ गए तो वो बोला, अब तुम्हारी आंखों में से कोई भी आंसू नहीं बहने दूंगा। तो वो हंसते हुए बोली, अरे मेरे मासूम से भोले भाले मियाँ, ये खुशी के आंसू हैं। तो वो मुस्कुरा कर इसके वालदैन को लेने और साथ सामान के लिए एक गाड़ी वाले को भी फ़ोन करके एड्रेस बताने लगा। दरवाजे में खड़ी बाजी को उसने सब जल्दी से बताया तो वो खुशी से मुबारकबाद देने लगी। शारब ने बड़ी इज्जत से बाजी को सलाम किया तो वो एकदम से खुश होकर पास आकर इसके सर पर शफकत से हाथ रख के बोली, तो मेरे छोटे भाई हो। कुछ बुजुर्ग हजरात बातें करते इधर से आ रहे थे। बाजी से अच्छे मूड में शारब को देखकर हैरान हुए तो शारब इनके पास चला गया और अपने रवैये की माफ़ी मांगी। वो इसके बदले हुए रवैये पर हैरान हुए तो फिर इसने मुख्तसरन मासी का भी बताया कि वो इसे समझाती थी, फिर फ़कीरनी का भी बताया और सबसे अपने रवैये की माफ़ी मांगी और इन सब का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इसके वालदैन का बहुत साथ दिया। उन्होंने बढ़कर इसे गले लगा लिया और बोले, हम सब एक फैमिली हैं, हमारे दुख सुख सब साझे हैं। जाओ तुम अपने सास ससुर को ले आओ, ये तुम एक अच्छा काम करोगे। माला ने वालदैन को इतने में फ़ोन पर सब बता दिया। पहले तो वो आने पर राज़ी ना हुए। जब माला ने कहा कि आप इसका अच्छा मूड ख़राब करना चाहते हैं, वैसे भी आप इधर रेंट पर रहते हैं और शुक्र करें कि दामाद बेटा बनना चाह रहा है, तो वो बोले, अच्छा ठीक है, दामाद खुद आकर कहेगा तो हम आ जाएंगे। तो फिर माला ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।